Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I welcome all of my friends and students for zoology classes. Today's class is for the 12th and the topic that we are going to discuss the accessory ducts. My dear friends, in the previous topic we were discussing about the testes, and I told you that the testes are the sites where the spermatozoas are found. These testes internally have about 2 to 300 lobules, which are called as, and in these lobules, there are the tubules which are called as seminiferous tubules, and in these seminiferous tubules, the spermatozoas are formed. After the formation of spermatozoa in the seminiferous tubules, they reach to the rete testes, and from rete testes, about 20 small ducts are formed. Small ducts are formed, which are called as vasa efferentia. From the vasa efferentia, they pierce the outer cavity, that is tunica albuginea. And they enter into the epididymis. This epididymis, it is a highly coiled part, and it has three parts. One is called as a caput part. Second is called as a corpus, and third is called cauda part. So this epididymis, it is the highly coiled part which has got three parts. One is called the head, that's called caput. This is also called a head. Second is called as the corpus, which means the body, and third one is the cauda, that means the tail. So this is the site where the spermatozoa are formed. Spermatozoa are stored, and they attain the maturity in the epididymis. So it is a site of maturity, that means storage of food and capacity, that means fertility. They increase the fertility of the spermatozoa. So they increase the fertility of spermatozoa. जो स्पर्म्स होती है, इनकी फर्टिलिटी इंक्रीज होती है इस एपिडाइडिस में. तो इसके तीन पार्ट्स होते हैं. तो पहला वाला जो पार्ट होता है उसको कहते हैं कैपिट या हेड. तो दूसरा वाला जो मिडिल वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं कॉर्पस, CORPUS, corpus, that means the body, and the third one is the cauda, that means the tail part. So from the vasa efferentia enters the epididymis through the head part, and in the epididymis, which is highly coiled, these spermatozoa are stored for a short period of time, and they attain the maturity. That means they store the food, they get the energy and the capacity to fertilize the ovum. After that, these sperms, they pass into the vasa deferens. This vasa deferens is slightly coiled. It's not highly coiled. It is slightly coiled part. This slightly coiled, it at the beginning it is slightly coiled. At beginning it is slightly coiled. After that, it is straight, which passes through the inguinal canal and joins the ejaculatory duct. This is about 40 centimeters long tube or the duct which arises from the epididymis. तो ये कहाँ से arise होता है? Which arises from epididymis. एपिडाइडमिस से अराइज होता है, जो 40 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होता है, जो बिगनिंग में थोड़ा स्लाइटली coiled होता है. आफ्टर दैट इट पास थ्रू द इंग्यूनल कनाल. इट passes through inguinal canal and joins with ejaculatory duct. इसके बाद ये ejaculatory duct से ज्वाइन होता है. तो ये जो ejaculate थोड़ा थिक होता है, जो वासा डिफरेंस होता है ये थोड़ा थिक होता है. इसकी जो वॉल्स होते हैं ये थिक होते हैं,
थिक होते हैं। तो इसके बाद ये ज्वाइन होता है इजैकुलेटरी डक्ट। ये जो इजैकुलेटरी शॉर्ट डक्ट होता है, इट इज शॉर्ट थिन डक्ट, शॉर्ट थिन मेम्ब्रेनस डक्ट होता है ये मेम्ब्रेनस डक्ट, तो विच इज अबाउट 2 सेंटीमीटर्स लॉन्ग होता है। इसके बाद जो डक्ट होता है इट पासेस थ्रू द प्रोस्टेट ग्लैंड एंड जॉइन्स विद द यूरेथ्रा। इसके बाद ये ज्वाइन होता है यूरेथ्रा से। तो जब ये यूरेथ्रा से ज्वाइन हो गया, जब यूरेथ्रा से ज्वाइन हो गया तो ये जो यूरेथ्रा होता है ये इट इज़ अबाउट 20 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब। तो ये जो क्या होता है 20 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होता है। तो इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। तो पहला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल पार्ट, प्रॉक्सिमल प्रोस्टेटिक पार्ट। प्रोस्टेटिक पार्ट होता है, ये पहला वाला पार्ट उसका होता है जो प्रोस्टेट ग्लैंड के साथ ही होता है। तो दूसरा जो होता है वो होता है मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। और तीसरा जो उसका पार्ट होता है वो होता है डिस्टल पार्ट, या इसको कहते हैं पीनियल यूरेथ्रा होता है। तो ये सारा जो होता है ये 20 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होता है। तो स्टार्ट होता है यूरिनरी ब्लैडर से। तो इसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट उसका होता है यूरिनरी ब्लैडर से स्टार्ट का होता है। तो आप लास्ट में ये जाता है फिर किसके साथ, पेनिस के साथ ये ज्वाइन होता है। तो ये इसके 3 पार्ट्स होते हैं। तो ये रिसीव करता है इजैकुलेटरी डक्ट भी और यूरिनरी ब्लैडर, दोनों इसमें ओपन हो जाते हैं। तो इसके बाद फिर आता है फिर जो लास्ट जो पोर्शन होता है वो होता है पिन्स जो होता है। तो पिन्स जो है ना इट्स एन एक्सटर्नल पार्ट होता है यूरेथ्रा का, एक्सटर्नल पार्ट ऑफ यूरेथ्रा होता है। तो ये जो पिन्स होता है इट इज़ मेड अप ऑफ स्पंजी टिश्यू। तो इसमें इसके 2 तरह के टिश्यूज़ होते हैं। नंबर 1 होता है कॉर्पोरा कैवर्नोसा, तो ये स्पंज टिश्यू होते हैं। दूसरा होता है कॉर्पोरा स्पंजियम। ये जो कॉर्पोरा कैवर्नोसा होता है टिश्यू, ये जो पिन्स होता है इसके साइडों में होता है। बाकी जो पोर्शन होता है वो होता है कॉर्पोरा स्पंजियम, वो सारे इर्द गिर्द होता है। तो बाकी जो पोर्शन होता है वो होता है कॉर्पोरा स्पंजियम का। तो इसी का सारा पार्ट होता है। तो ये जो स्पंजियम टिश्यू होता है ये क्या होता है, इट्स मेड अप ऑफ साइनसेस। इसमें साइनसेस होते हैं, ब्लड वेसल्स होती है, साइनस होते हैं जिनमें डिप्रेशन होते हैं। तो अक्सर जो ये डिप्रेशन दे आर एम्प्टी होती है, ये खाली होते हैं डिप्रेशन, इनमें ब्लड नहीं होता है। तो ये जो पेनिस होता है एक्सटर्नल पार्ट ऑफ यूरेथ्रा होता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ये जो यूरेथ्रा होता है इसके 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है जो प्रोस्टेटिक पार्ट होता है, दूसरा होता है मेम्ब्रेनस पार्ट और तीसरा होता है डिस्टल पार्ट या पिनल पार्ट होता है। तो ये 20 सेंटीमीटर लॉन्ग यूरेथ्रा इसका होता है। तो इसके बाद जो ये एक्सटर्नल पार्ट उसका होता है उसको बोलते हैं पिन्स। ये जो पिन्स होती है तो ये जो एक्सटर्नल पार्ट ऑफ यूरेथ्रा होता है तो इसके ये 2 टिश्यू का बना होता है। एक होता है कॉर्पोरा कैवर्नोसा, CAVERNOSA कैवर्नोसा। तो ये जो पिन्स होता है इसके साइड में होता है। और दूसरा होता है कॉर्पोरा स्पंजियम। तो ये जो पिन्स होता है ना इसके इर्द गिर्द होता है, ये ऊपर से नीचे तक ये होता है। तो ये जो कॉर्पोरा स्पंजियम इसमें होते हैं साइनसेस। तो ये छोटे छोटे डिप्रेशंस इसमें होते हैं विच कंटेन द स्फिंक्टर्स होते हैं। तो इसके बाद क्या होता है कि अक्सर ये खाली होते हैं, ये एम्प्टी होते हैं। लेकिन जब एक्साइटेशन होती है, सेक्सुअल एरोजल होता है, एक्साइटेशन होती है, सेक्सुअल एरोजल होता है, तो इसमें ब्लड सर्कुलेशन तेज़ होता है। तो जो ब्लड होता है ये इन साइनस में जाता है। जब इन साइनस में अंदर जाता है
ऊपर से फिर जो बाहर से जो यूरेथ्रस पार्ट वहाँ पे स्पिंक्टर होता है वो बंद हो जाता है, तो ये जो ब्लड इसमें जमा रहता है, इसमें आती है इरेक्शन। इसके बाद ये जो पिनस होता है ये इरेक्ट होता है, देन इट इज़ रेडी फॉर द सेक्चुअल एक्ट। इसके बाद जो ये कॉर्पोरस स्पॉन्जियम जो होता है, एक्चुअली जो इसका टिप होता है, पिन्स का जो टिप होता है वहाँ पे ये थोड़ा इनलार्ज होता है और ये बनाता है एक सेंसिटिव पार्ट बनाता है जिसको बोलते हैं ग्लैंड्स। तो ये जो ग्लैंड्स होता है ये एक्सटर्नली कवर्ड होता है बाय फोर स्किन उस पर होती है, जो सर्कमस्टेंस के बाद निकाली जाती है। तो फिर रहता है वहाँ पे ग्लैंड्स, और ये जो ग्लैंड्स होते हैं इनलार्ज पार्ट होता है विच इज़ वेरी सेंसिटिव आफ्टर द एक्साइटेशन। इफ इट इज़ एक्साइटेड इट इज़ द मेन फैक्टर फॉर द इजैकुलेशन। जो इजैकुलेशन मेल में होती हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस ग्लैंड्स पिनस which is called is very sensitive part of the male reproductive system, that is penis. Thank you my dear friends for watching me.